Children, in this video we will cover new words and their meaning, question and answer, and some other exercise from the chapter Paramveer Chakra, Our Heroes, Class 6, Maharashtra Board. New words and their meaning. Legendary, meaning very famous and admired. Conspicuous, meaning outstanding. Posthumously, meaning after a person's death. Fitted with civil mounting, meaning fixed in a way which allows it to move freely. Obverse and reverse, meaning the front and back sides. Emblem, meaning symbol, an object that represents something. Thunderbolt, meaning a flash of lightning with a clap of thunder that strike at something. Invincible, meaning impossible to defeat. Determination, strong resolve. Talent, meaning brave, courageous. Inspiring, meaning motivating. Account, meaning a description of an event. Fatal, meaning causing death. Read the passage and answer the following question. So बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उनके आंसर लिखने हैं. क्वेश्चन ए, व्हाट इज परमवीर चक्र? तो क्वेश्चन ए में पूछा गया बच्चों कि परमवीर चक्र क्या है. आंसर, परमवीर चक्र इज द इंडियाज हाईएस्ट decoration. It is awarded for a noticeable act of bravery, valor and sacrifice in the presence of enemy on land, at sea or in the air. So बच्चों, परमवीर चक्र जो है वो बहुत बड़ा मेडल है इंडिया में, और वो हमें क्यों दिया जाता है? हमारी ताकत के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, जो हम करते हैं एनिमीज मतलब अपने दुश्मन के अगेंस्ट में, लैंड पे करें, समुद्र में करें या एयर में करें. Question number B. What is seen on awards and rewards of परमवीर चक्र मेडल? So बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि परमवीर चक्र के आगे और पीछे क्या दिखता है. आंसर, on the awards, the Paramveer Chakra medal has the Indian national emblem at the center, surrounded by 4 replica of Indra's Vajra. On the reverse, the word Paramveer Chakra was engraved in Hindi and English with 2 lotus flower in between. Question number C. Who designed the Paramveer Chakra medal? So बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है कि परमवीर चक्र मेडल को किसने डिजाइन किया है. आंसर, द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइन्ड बाय सावित्री बाई खानकोलकर, अ यूरोपियन लेडी हु वॉज मैरिड टू एन इंडियन आर्मी सोल्जर. सो बच्चों, जो परमवीर चक्र मेडल है उसको सावित्री बाई ने डिज़ाइन किया है, जो एक यूरोपियन औरत थी और उनकी शादी इंडियन आर्मी के सोल्जर से, जवान से हुई थी. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट मेक्स इंद्रास वज्रा और वेपन इनविंसिबल? इनविंसिबल मीन्स बच्चों इम्पॉसिबल टू डिफीट. आंसर, इंद्रास वज्रा is invincible due to presence of the extraordinarily powerful bone of the sage Dadichi. His bones were used to create the weapon. Write the story of sage Dadichi sacrifice in your own words. So बच्चों, सेज मीन साधु, तो यहाँ पे हमें जो साधु दधीची थे उनके जो भी सेक्रीफाइसेस थे उनके बारे में खुद से लिखना है. आंसर, according to the legend, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. Innocent people on earth suffered due to shortage of water. This demon could only be defeated with the powerful weapon. It was learned that sage Dadichi had bones of such extraordinary power. He was a noble person and he sacrificed his life to help the people. Thus, Indra's Vajra was made from these bones and the demon was defeated. So बच्चों, this is the story of Dadichi. Dadichi was a sage. Sage means साधु थे. तो एक बार बहुत पहले की बात है कि एक डेमन मीन्स राक्षस ने क्या किया कि पूरी दुनिया का जो पानी था उसे चुरा लिया, और जो इनोसेंट मीन्स जो मासूम लोग थे धरती पे वो पानी की कमी की वजह से सफ़र करने लगे, और वो जो डेमन था वो सिर्फ उस आदमी से डिफीट हो सकता था जिसके पास पावरफुल वेपन यानी पावरफुल हथियार होते. इट वॉज लर्न दैट सेज दधीची हैड बोन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर.
और ये कहते हैं कि जो सेज दधीची थे उनके जो बोन्स थे, हड्डियाँ थी, वो बहुत पावरफुल थी। इसीलिए ही वॉज अ नोबल पर्सन एंड ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू हेल्प द पीपल। और वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही महान इंसान थे और उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उन्होंने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सके। Thus, Indra's Varja was made from these bones and the demon was defeated. Defeated means हरा देना या हारा हुआ। तो क्या हुआ कि जब सेज दधीची ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उनकी बोन्स जो उनकी हड्डियां थी उनसे क्या बना, इंद्रावर्जा बना, और इंद्रावर्जा से उस जो डेमन राक्षस को हराया गया। और वही इंद्रावर्जा हमारे परमवीर चक्र में बना हुआ होता है। Point number 3. Read aloud the account of how flying officer Nirmaljeet Singh Shekon sacrificed his life to defend our country. So बच्चों, इस पॉइंट में आपको क्या करना है, इसमें आपको चैप्टर को दोबारा से ध्यान से पढ़ना है कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह ने कैसे अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। Number 4. Find more information about other Paramveer Chakra awardees. Prepare a collage using photographs, picture and text matters written in beautiful handwriting. So बच्चों, इस पॉइंट में आपको क्या करना है कि जो भी परमवीर चक्र और जितने लोगों को मिला है उनकी एक लिस्ट बनानी है, इंटरनेट से या अपने स्कूल की लाइब्रेरी से उनके फ़ोटोज़, ग्राफ, पिक्चर और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको हैंड राइटिंग में खुद से बहुत अच्छे से लिखना है। तो मैं नीचे आपको 1-2 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम बता देती हूँ। फर्स्ट वन है मेजर सोमनाथ शर्मा, फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, इनको सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था। मेजर ध्यान सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह। इसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम दिए हैं। एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन आर्म्ड फोर्स, द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स। सो बच्चों, यहाँ पे हमें जो इंडियन आर्म फोर्स के 3 मेजर वो हैं, द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे आर्मी के बारे में। Army is the part of armed force trained and equipment to fight on land. It is the largest component of the Indian Armed Force. The highest ranking officer of the army is known as Chief of the Army Staff and addressed as a General. The current Chief of Army Staff is General Manoj Mukund Narwin. The Indian Army is the third largest army in the world. Indian Army पूरी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है और जो भी हमारी लैंड फाइट्स होती है बाकी कंट्रीज से, उन्हें आर्मी ही देखता है और करता है। और इंडियन आर्मी में जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है उन्हें चीफ और आर्मी स्टाफ बोलते हैं। और करेंटली मनोज मुकुंद नारविन इंडियन आर्मी के सबसे हाईएस्ट रैंकर ऑफिसर हैं। Navy is the part of armed force trained and equipment to fight at sea. It is the smallest component of the Indian Armed Force. The highest ranking officer of the Navy is Chief of Naval Staff and addressed as Admiral. The current Chief of Naval Staff, Admiral, is Karambir Singh. The Indian Navy is the 5th largest navy in the world. So बच्चों, जो इंडियन नेवी है वो सी के थ्रू, जो भी हमारी समुद्र के थ्रू जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनको करता है। और जो हाईएस्ट रैंकिंग होती है नेवी के अंदर उसे चीफ ऑफ नवल स्टाफ कहते हैं। और करेंटली जो हमारे चीफ ऑफ नवल स्टार हैं उनका नाम करमबीर सिंह है। Air Force is a part of armed force trained and equipped to fight in the air. It is the 2nd largest component of Indian Armed Force. The highest ranking officer of the Indian Armed Force is known as Chief of Air Staff and addressed as Air Chief Marshal. The current Chief of the Air Staff is Air Chief Rakesh Kumar Singh Bhadauria. The Indian Air Force, the 4th Air Force in the world. एयर फोर्स भी इंडियन आर्म फोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो भी हमारी हवाई लड़ाइयाँ होती हैं उसमें एयर फोर्स ही हमें सपोर्ट करता है और हमारी रक्षा करता है। और एयर फोर्स में जो भी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है उसे एयर चीफ मार्शल बोला जाता है।
और करेंटली राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे देश के चीफ मार्शल हैं। What can you do to show your love, respect and support to the soldier who fight for the country? Discuss this in the classroom. For example, you can send greeting cards to them on various occasions with the help of your teacher. So बच्चों, इसमें क्या करना है? It's a activity kind of thing. इसमें ये करना है कि आप क्या करोगे अपना प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट सोल्जर्स को दिखाने के लिए जो हमारी कंट्री के लिए फाइट करते हैं। Show our love, respect and support to the soldier who fight for the country. We can send poems, pictures and gifts made from recycled items. In this way, we show respect for our country's resources as well. In addition to this, a collage made from picture of the current development in the country could be perfect gift. Lastly, we as responsible youth of the country could join the defense force and support these brave heart and help keep our country safe. अपने सैनिकों को प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिखाने के लिए आप उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हो, उनके लिए पोएम्स लिख सकते हो, डिफरेंट पिक्चर बना सकते हो और गिफ्ट भी बना सकते हो जो रिसाइकल्ड आइटम्स पे हों, जैसे जिन्हें दोबारा यूज़ किया जा सके। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक कोलाज बनाओ जो भी डिफरेंट नए डेवलपमेंट हो रहे हैं कंट्री में, उसका भी दिखा सकते हो कि वो बॉर्डर पे फाइट कर रहे हैं इंडिया के लिए और इंडिया में डिफरेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं। और एज अ यूथ और जब आप बड़े हो जाओगे तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द आर्मी और अपने देश के लिए अपने लिए कुछ कर सकते हैं। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box and also subscribe, share and like this channel. Thank you.